Good morning, all. Good morning, ma'am. Hope my voice is audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Greetings from Vision आपकी आवाज Automation गूंज रही है Solution. बहुत। मेरी वॉइस गूंज रही है बहुत. Okay. मैम गुड मॉर्निंग। Very good morning. अभी ठीक है? यस मैम, आपकी आवाज गूंज रही है, क्यों हो रहा है? नहीं, भी ठीक नहीं है। अभी ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यस मैम। As we all know, today's session is okay. So we are going to start a session, यस and मैम। as we all know, electric cars are the future for this, for real time this time. On behalf of Vision Automation Solution, I welcome you all in the session of electric hybrid vehicle and hands-on practical session on MATLAB. Today we are having two seniors member with us for sharing their knowledge on electric hybrid vehicle. First, Mr. Bhavani Singh Shekhawat sir, Senior Operation Manager having 14 plus years of experience in the field of industrial automation and solar. He is also a certified engineer by SCGJ, NISC and CSP certified engineer. And Mr. Vishnu sir, Senior Electrical Engineer having 7 experience in electric vehicle, and he has completed many of the research papers in their 7 years of experience. In this session is divided in three parts. First, about electric vehicle, why electric vehicle, and other things related to electric vehicles. Second part is designing electric vehicle in MATLAB. And lastly, we will take the feedback session. So this is the total today's session. Now I hand over to Mr. Bhavani Singh sir for starting the session on electric hybrid vehicle and hands-on practical on MATLAB. Bhavani sir. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Thank sir. you. Good morning, all. Good morning, all the participants. जैसे अभी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे तक, ठीक है। मीन टाइम में अगर हो सकता है मैं आप लोगों से कुछ क्वेरीज भी करूं, ठीक है। तो मैं इसमें यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी मुझसे क्वेरीज करें, इवन जो क्वेरीज है उनका रिस्पोंड भी करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मैं बोलता रहूं और आप लोग जो है मतलब उसे सिर्फ मतलब सुन ही रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या है, कम्युनिकेशन अगर हमें फाइन रखना है तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय साइड इवन दैट यू आल्सो आस्क द क्वेरीज, okay, so accordingly I will respond, I will ask the queries and you will respond, okay. So today we start with our session with electric vehicles, okay. जैसा मैम ने इनिशियली अभी डिस्कस किया, she started this topic with hybrid electric vehicle, ठीक है। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है दैट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट रिसेंटली इफ यू कैन सी मोर ओवर electric vehicles are in more trend comparative to hybrid electric vehicles, okay. And there are some specific reasons why we are especially talking only about battery and electric vehicles, okay. These EVs are called BEV, that we will see within this presentation. So before starting this presentation, I wanted to know about how much of you participants know about this electric vehicle. और ठीक है, अगर मैं बेसिक की बात करता हूँ, जैसे आप लोग अभी कंटिन्यूस देख भी रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी मार्केट में जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, किस कंपनी के हैं, कुछ क्या मॉडल है, कुछ आप में से कोई शेयर करेगा उसके बारे में कि आप कितना क्या जानते हैं या क्या चल रहा है मार्केट में अभी।
इससे रिलेटेड। यस सर, गुड हाँ, मॉर्निंग। कोई भी। सर टाटा की आई है, टाटा की नेक्सॉन ईवी। वेरी गुड, टाटा का नेक्सन है, वेरी गुड। और एमजी की आई, एमजी जेड एस ईवी। एमजी का, फाइन। एंड और अगर ब्रांड में देखा जाए तो मर्सिडीज ने भी अभी निकाली है हम्म। EQS। Sakona. हाँ, कोना, हाँ इसका ये हुंडई का है शायद, है ना हुंडई ये। कोना। हम्म। टेस्ला। हाँ, टेस्ला डेफिनेटली। तो इवन बहुत ये फोर व्हीलर्स में हो गए, इवन टू व्हीलर में भी अगर आप देखेंगे रिसेंट का जो टाइम पीरियड रहा है, और अगर स्पेशली इस कोविड पीरियड में आपने देखा होगा जो प्राइजेज है, दैट हैज इंक्रीज्ड अप्रोक्स 35%, 35 नहीं, 40 to 50%। ठीक है, 40 से 45% तक जो आपका फ्यूल जो है पेट्रोल डीजल, इनके प्राइस हाइक हो गए हैं। ठीक है, जिसके कारण इन मतलब जो मूवमेंट है टुवर्ड्स योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मे बी इट इज योर टू व्हीलर और फोर व्हीलर। ठीक है, तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है इसी की तरफ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसी रिफरेंस में अभी हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट और हाउ टू डिजाइन समथिंग विद रेफरेंस टू योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, कहाँ आप काम कर सकते हैं, किस तरीके का इसमें जो करियर प्रोस्पेक्टिव है या फ्यूचर आप किस में देख सकते हैं। ठीक है, सो आई कंटिन्यू विद माय प्रेजेंटेशन। Okay, is it visible to everyone? यस सर। Yes, sir. Okay, fine. So basically here we will see the future prospect and the research domain, what are the possibilities in electric vehicles. Okay, now first here we will see about the mobility and vehicles. It's what with reference to electric vehicles is the past, then the present, and what is the future prospect. Then types of electric vehicle like battery electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicles, and fuel cell electric vehicles. And what are the other more possibilities that also we will cover. Then the research prospect, if we are working if you are looking into this electric vehicle. So this is with reference to your automobile engineering, as well as the major part are related to your electric things like motor, batteries. Okay, and then if we are coming to the controlling, like electronics is there. So special controllers are there for battery charging, battery monitoring, etc. So there is different future research prospect. So there we can theoretical based study we can perform, then the simulation is possible, then further design and implementation of EVs. ठीक है, अभी अगर लेटेस्ट भी रिसेंट की आप लोग बात करते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो फोर व्हीलर या टू व्हीलर इस तरीके से कुछ डिजाइन करते हैं। डिजाइन भी नहीं, वो बेसिकली मोटर को प्लेस करते हैं एक व्हीकल के अंदर, एंड देन दे जस्ट टेस्ट इट, एंड ऑब्वियसली दैट इज वर्किंग। तो वो काम करता है, तो उसी चीज को मतलब उसको और बेहतर बाय परफॉर्मेंस हाउ वी कैन डिजाइन, हाउ टू सेलेक्ट ऑल द थिंग्स दैट वी विल सी हियर। एंड फर्दर रिसर्च डोमेन पॉसिबल लाइक in electrical system, in mechanical system, IoT, and the energy efficiency, IoT integration and energy efficiency. These are the major research prospect in our electric vehicles. Now let's first start with the history of electric vehicles. The first concept of this EV that came in 1769. So here you can ask, sir, it started with the 1769. Then in 1830 there was the second working this electric carriage was there from Germany. और जिसने ये डिजाइन किया था ये एक फैमिली थी, तो मतलब उन्हें इस तरीके से कहते थे, वो क्या बोलते हैं, मतलब कि ये कुछ डेविल है जो ऐसा कुछ उन्होंने अपना बनाया है और जिस पर ये चलते हैं और ये जादू टोने से मार सकते हैं। मतलब उस वक्त ये मेंटेलिटी थी एट द टाइम ऑफ 1830, एंड इन 1769 समवन थॉट अबाउट के ऐसा कुछ व्हीकल होना चाहिए। दिस इज इन 1769 दिस वाज नॉट द इलेक्ट्रिक व्हीकल, द फर्स्ट वन वाज डिजाइन इन 1813। Now after 1830 you can see directly the next research came here in 1995. तो इतना जो बिग गैप है, अगर आप देखते हैं ये मतलब अप्रोक्स
160 ईयर्स के आसपास का जो गैप यहाँ पर आया, तो इसका क्या रीजन है? ऐसा क्या हुआ कि 1830s के बाद में डायरेक्टली वी आर टॉकिंग इन 1995, वी स्टार्टेड इन 1995, देन in 2007, and now in today's scenario like 2020 or 2021. So what has सर उस टाइम पेट्रोल की कार ज्यादा ट्रेंड में होंगी सर, और पेट्रोल इधर सस्ता होगा। पेट्रोल तो उनमें जो रिक्वायर्ड फोर्स जो ये रिक्वायर्ड ये था, तो वो अवेलेबल था, और इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट लाइक फॉर सो बैटरी भी इतना डिजाइन थे, इवन मोटर्स थी, उनका काम किया गया था। सर आपकी तरफ से वॉइस में थोड़ा सा इशू हो रहा है। वॉइस कट रही है बार बार। हेलो हेलो। मैम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर की। जी मैंने भी यही बोला है सर, मैंने सर को। भवानी सर। अभी आ रहा है मेरा वॉइस क्लियर? जी सर परफेक्टली क्लियर है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू ही करता हूँ फिर से। और स्क्रीन भी विजिबल है मेरा अभी? जी सर। हेलो, विजिबल है। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के बाद जैसे ये 1995 में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटीग्रेट किया इन योर एग्जिस्टिंग आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो काफी जो इंटीग्रेशन के बाद में डिफरेंसेस आए। देन नेक्स्ट जो डिजिटलाइजेशन, मतलब कंट्रोल सिस्टम और जो ईवी का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2007। ओके, और अभी आप रिसेंट में कुछ हॉलीवुड मूवीज में देखते भी हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग के बारे में। हेलो। यस सर। ये जो ऑटोनोमस ड्राइविंग है, लाइक एआई बेस्ड ड्राइविंग और जो ड्राइवरलेस ड्राइविंग, तो जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, व्हीकल विल मूव इटसेल्फ और ऑटो मोड के अंदर। इवन जो एमजी की आपने बताई थी अभी किसी ने, तो हाँ, तो उसमें भी क्या है, ये ऑटो ड्राइविंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, और इससे भी काफी नेक्स्ट जो मूवमेंट चल रहा है कि और किस तरीके से इन्हें बेहतर बनाया जाए। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग अभी बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। द फर्स्ट वन इज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब इसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपका बैटरी रहेगा एनर्जी स्टोरेज के लिए, और जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो मोटर है। देन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल,
जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, ये हाइब्रिड मीन्स इनमें आईसी इंजन भी रहेगा ट्रांसमिशन के लिए और बैटरी भी रहेगी, मतलब दोनों ही सोर्स इसमें इंटीग्रेटेड रहते हैं। ठीक है, और प्लग इन का मतलब कि आप उसे बैटरी मतलब जो पावर सोर्स से चार्ज कर सकते हैं। तो पीएचईवी भी एक अच्छा ऑप्शन है ईवी के अंदर। देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें मेन से चार्जिंग का ऑप्शन नहीं रहता, मतलब इसमें भी रहेगा लाइक मोटर भी होगी और आईसी इंजन भी रहेगा, लेकिन आप उसे वैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से जो एनर्जी जनरेट हो रहा है तो उसी को ही ये बेसिकली यूटिलाइज करेगा। देन फ्यूल सेल लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एचओ सेल के बारे में भी आपने सुना होगा, तो वो भी बेसिकली सेपरेटली ने यूज करके और वाटर को एज ए की सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बट मोस्ट जो यूज्ड है दीज आर योर बीईवी एंड पीएचईवी। ओके, सो हेयर वी कैन सी द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कोई भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। दिस इज अबाउट हाइब्रिड लेट फर्स्ट सी विद ओनली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑल ईवी। ठीक है, ये आपको इसमें कंप्लीट चेसिस पर दिखाई दे रहा है कि चेसिस के ऊपर आपका यहाँ जो बैक साइड में जो येलो पार्ट है ये आपका बैटरी पैक। ठीक है, बैटरी पैक जो है, और ये फ्रंट में यहाँ चार्जिंग पोर्ट दिखाई दे रहा है, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ सेंटर में अलाइंड है, मतलब कि ये जो मोटर है बेसिकली आपकी इनव्हील मोटर नहीं है, इनव्हील या एक्सियल मोटर बोलते हैं, जो जनरली टू व्हीलर्स में यूज होते हैं, और फिर जो टेस्ला है वो भी इनव्हील मोटर यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब वो व्हील के अंदर ही मोटर लगता है। अदरवाइज जो आपने देखा होगा जैसे जो ई रिक्शा में आप लोगों ने देखा होगा, वहां फर्दर एक ट्रांसमिशन लगा रहता है। ठीक है, और उसके थ्रू मतलब जो मोटर है मोटर व्हील्स को ड्राइव करती है। देन थर्मल सिस्टम फॉर कूलिंग, डीसी डीसी कन्वर्टर एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर, लाइक बैटरी चार्जिंग के लिए और जो मोटर कंट्रोलिंग के लिए ये कुछ कंट्रोलर वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट जैसे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एंड देन अगर मैं इस एक डिफरेंट की बात कर रहा हूँ, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड में आप देख सकते हो जो पार्ट्स बैटरी वाले सिस्टम के थे वो तो है ही एग्जिस्टिंग, साथ ही साथ में एक फ्यूल टैंक भी दे रखा है। ठीक है, मतलब कि आप फ्यूल और दोनों से ही यूज कर सकते हैं। ये पीएचईवी की बात कर रहा है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। लॉन्ग ड्राइव में ये बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बीईवी की बात करते हैं, बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसका जो अवेलेबल है एमजी का, तो उसका मैक्सिमम 310 किलोमीटर जो सिंगल चार्जिंग के अंदर वो कमिट करते हैं। अगर आपको कहीं लॉन्गर डिस्टेंस पर जाना है देन यू कैन गो फॉर पीएचईवी, तो जिसमें आपके पास दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। ओके, सो ये जो हमने देखे अभी, इन्हीं कंपोनेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया है विद डिटेल्स। लाइक फर्स्ट अगर मैं बैटरीज की बात करता हूँ, तो बैटरी में मेरे पास में अभी जो प्रेजेंट में ऑप्शन है लाइक लिथियम आयन, लेड एसिड, जो कि करंट जनरली यही यूज होता है अगर आप इसमें देखेंगे। और ई रिक्शा जो आपने देखे होंगे काफी, तो इनके अंदर लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं। इवन अगर हम लोग जो महिंद्रा का एक E2O आया था इनिशियली, उसमें भी क्या यही यूज की गई थी, लेकिन फर्दर लिथियम आयन, ठीक है, इसे यूज किया गया। लिथियम आयन की परफॉर्मेंस जो है, मतलब जो पावर आउटपुट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इसलिए इसे यूज कर रहे हैं। फिर देन फर्दर अलग ऑप्शन भी है लाइक निकल मेटल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टाइटेनियम, लेकिन ये प्रिफर्ड नहीं है। एक सोडियम आयन भी है जो कि फर्दर एक ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है बैटरीज में। फिर जो सेंसर्स है, सेंसर भी काफी यूज किए जाते हैं लाइक, और मेजर फॉर ऑटोनोमस मोबिलिटी सेंसर्स का यूज किया जाता है, लाइक इमेज प्रोसेसिंग का। अभी जैसे थोड़ी देर में विष्णु सर आपको इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे भी, मैटलैब पर आपको सिमुलेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, देन डाटा कलेक्शन के लिए इवन विजन सेंसर्स वगैरह ये भी यूज किए जाते हैं। देन कंट्रोलर्स हैं,
and tires and transmission system and chassis and motors like DC motor, AC motor, in-wheel motor. These are different motors which are used. जनरली हम जैसे AC इंडक्शन मोटर के बारे में बात करते हैं, और आपका जो ये इन व्हील मोटर है ये DC मोटर्स रहते हैं, ठीक है। देन IoT लाइक फॉर डाटा हैंडलिंग, डाटा मैनेजमेंट, प्रिडिक्शन, कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से कंप्लीट ईवी को स्मार्ट बनाने के लिए ये और बेहतर एफिशिएंट बनाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और इनके मतलब एज पर रिक्वायरमेंट इनका सिलेक्शन किया जाता है, और उसी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही जो ईवी है वो बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या क्या कंपोनेंट जो है वो चाहिएंगे। हाँ, आप में से ही कोई बताओ कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करना है जिसका के 100 के जो अप्रोक्स 200 kg का लोड कैरी कर सके। हाँ कैंडिडेट, आप ही मुझे बताएंगे कि क्या क्या चीजें चाहिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करने में। हाँ पार्टिसिपेंट्स, हाँ आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करना है तो क्या क्या जो कंपोनेंट है वो मुझे सेलेक्ट करने होंगे, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज, लाइक अगर मुझे मोटर सेलेक्ट करना है तो वो कितने रेटिंग का होगा, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा। या अगर मैं बैटरी सेलेक्ट करता हूँ तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, सबसे पहले जैसे अगर मैं आप लोगों से मोटर के बारे में ही पूछता हूँ, तो मोटर की जो पावर रेटिंग है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं। हाँ बताएंगे आप में से कोई। मोटर या बैटरी का जो सिलेक्शन है, बैटरी मुझे सेलेक्ट करना है, बैटरी की बैकअप में किस तरीके से उसका मोटर विल डिपेंड अपॉन द टॉर्क रिक्वायरमेंट। वेरी गुड हर्ष, ओके, इट विल डिपेंड ऑन योर टॉर्क रिक्वायरमेंट। सो वी विल सी कार पे जितनी फोर्स लग रही है उस पर डिपेंड करेगा। बरोबर, कितने फोर्सेस लग रहे हैं बताएंगे जरा इसमें आप। तो जैसे सडन ब्रेकिंग का फोर्स होता है, एक होता है जब हम टर्न ले नहीं, रहे होते हैं उसका अगर मैं कहता हूँ इनिशियली एक व्हीकल मेरा खड़ा हुआ है, ठीक है, और जैसे ही मुझे इसे मूवमेंट करवाना है तो व्हाट आर द पॉसिबल फोर्सेस, मतलब कि क्या क्या ऐसी फोर्स होंगी फ्रिक्शन जो हो उसके गया, ऊपर। फ्रिक्शन, वेरी गुड, रोलिंग फ्रिक्शन, और पेलोड। रोलिंग, पेलोड, ओके। पेलोड फाइन, मतलब पेलोड को अगर मैं रोलिंग के साथ ही काउंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि रोलिंग जो होगी, ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई व्हील रोल करवा के मुझे आगे लेकर जाना है तो उस पे जितना भी पे लोड है, ठीक है, वो उसके साथ ही काउंट होगा, ठीक है। एक आपका ग्रेडियंट फोर्स भी होता है, ठीक है। जैसे अगर आप भी जैसे किसी फ्लाईओवर के ऊपर मूव करते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है, तो वो वाला भी आपको जो ग्रेडियंट, जो एड ऑन फोर्स जो रहेगा उसमें ग्रेडियंट फोर्स, वो भी आपको इसमें कंसीडर करना रहता है। देन एक एरोडायनेमिक फोर्स एक्सीडेंटल भी भी, होता हाँ। है ना, और एक आपका एरोडायनेमिक्स पर भी डिपेंड करता है। वो क्या होगा, जैसे कार का जो डिजाइन आपने बनाया है, अगर एक बस जैसी कार बनाई है और एक आपने कार जैसी कार बनाई है, ठीक है, तो दोनों उस पर जो अप्लाइड रिवर्स एयर का जो फोर्स रहेगा, ठीक है, वो भी हमें कंसीडर करना रहता है कि ठीक है रिवर्स में कितना उस पर फोर्स आएगा, ठीक है। और अगर मेरा वो अगर उसकी मैं हाइट इसी तरीके से ले रहा हूँ, या भी आपने देखा होगा कार का जो फ्रंट रहता है वो कंपैरेटिवली छोटा रहेगा, फिर ऊपर मतलब फिर थोड़ा उसके अंदर शेप में चेंज आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरोडायनेमिक फोर्स, ये भी आपको कंसीडर करना रहता है। तो ये सब चीजें आप देखते हुए एक मोटर का सिलेक्शन करते हैं कि टोटल नेट उस पर कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, देन अकॉर्डिंग टू दैट फोर्स यू विल कैलकुलेट योर टॉर्क, एंड विद रेफरेंस टू टॉर्क यू विल कैलकुलेट द साइज ऑफ योर मोटर, ठीक है। ये भी हम लोग देख लेंगे कि ये किस तरीके से हम डिराइव करते हैं। पैरेलली जो दूसरा पार्ट है वो मेरा बैटरी, बैटरी मैं किस तरीके से सेलेक्ट करूंगा। जितनी लोकेश पावर की तिवारी, बैटरी होगी ओके, उतनी मोटर के अकॉर्डिंग भी होगा ना सर उसमें।
मोटर कितनी पावर ले रही है इसके अकॉर्डिंग होगा सर। बरोबर, अभी ऑब्वियस है ये रहेगा आपके भी बैटरी चाहिए ही क्यों है, मुझे मोटर के लिए ही चाहिए, है ना। तो जो बैटरी बैकअप है वो उस मोटर को ड्राइव करने के लिए और कितने समय के लिए, जो बैटरी का यूनिट है वो आप लोग जानते हैं, डिपेंड ऑन, यस, हाँ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एम, जनरली जो आप लोगों ने बैटरीज देखी है एमएएच में देखा होगा, मिली एम्पियर ओवर, ठीक है। बैटरी का जो रेटिंग है दैट इज इन एमएएच, और अगर आप हायर साइज में जाते हैं देन एम्पियर ओवर रहता है उसमें, मतलब कितना एम्पियर चाहिए कितने टाइम के लिए। एंड द वोल्टेज इज कंसिडर्ड फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज, अगर जैसे आपका 12 वोल्ट का बैटरी है या 24 वोल्ट का बैटरी है, दैट इज कंसिडर्ड आइडियल, ठीक है। अगर आपने कहा कि मुझे 10 एम्पियर तक का करंट ड्रॉ करवाना है, ठीक है, मेरी जो मोटर है अगर ये 5 किलोवाट का मोटर है और सिंगल फेस की मोटर है, ठीक है, तो सिंगल फेस के रेफरेंस में आप लोग क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे भी, कितना करंट इसको चाहिए, ठीक है। वोल्टेज आपके पास में ऑलरेडी रहेगा, एक सेकेंड, बैटरी शुड हैव गुड चार्जिंग स्पीड विद द मिनिमम लीकेज एंड रेटिंग विल डिपेंड ऑन द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ लोड, यस, ठीक है। अब जैसे आपने कहा गुड चार्जिंग स्पीड इन मिनिमम लीकेज, ठीक है, लिंकेज, तो अब ये पॉसिबल कैसे है। अगर मैं लेड एसिड बैटरी की बात करता हूं, उसमें आप लोगों ने देखे होंगे जो चार्जिंग टर्मिनल है देयर आर ओनली 2 टर्मिनल्स, ठीक है, मतलब एक बड़ी भी साइज में भी बैटरी आती है, जबकि आपने देखे होंगे कि ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज में अवेलेबल आपके सेल फोन में भी, ठीक है। तो उसका क्या मल्टीपल क्वांटिटी यूज करके, ठीक है, जो इवन बैटरी के जो इनके चार्ज कंट्रोलर भी रहते हैं, ठीक है, उसमें भी मतलब नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन रहता है, मतलब कि क्वांटिटी बढ़ा दी, पावर रेटिंग कम रहेगी, ठीक है, तो वो मल्टीपल मतलब एक ग्रिड सिस्टम बन जाता है इनमें, ठीक है। तो इस तरीके से बैटरी का सिलेक्शन करते हैं कि कितनी पावर रिक्वायर्ड है, और पावर में से आप किलोवाट में से आप जो P इक्वल्स टू VI के रेफरेंस में पावर जो है, वेट ए मिनट, आई जस्ट राइट इट डाउन हेयर एंड विल कैलकुलेट इट। ये Okay, so here we are talking about the motor selection criteria. तो फर्स्ट अगर मुझे F जो फोर्स टोटल निकालना है, सो टोटल रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू F रोलिंग प्लस F ग्रेडियंट एंड F एरोडायनेमिक्स ड्रैग। तो एरोडायनेमिक ड्रैग के बारे में भी हमने बात किया, ग्रेडियंट के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो एक रिवर्स फोर्स रहती है व्हाइल क्लाइंबिंग ए व्हीकल, ओके, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड। एंड एफ रोलिंग जो कि आपको मूवमेंट के लिए चाहिए। देन फर्दर एफ रोलिंग इज कैलकुलेटेड विद द गिवन फॉर्मूला CRR, okay, CRR is basically coefficient for the rolling resistance. Then M is your mass, ये कितना आपका टोटल मास है, जो वेट आपको कैरी करना है, और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एफ रोलिंग जो कि फोर्स रहेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर यू कैन सी दैट 44.14 न्यूटन, दिस इज अ फोर्स रिक्वायर्ड। एंड देन फर्दर by placing it in a formula you can see that here it is derived that 1.2 kilowatt motor may be enough for such a case. Similarly अगर आपके पास में अगर हायर स्पीड लोअर स्पीड का या जैसे भी वेरिएंट केस रहेंगे उनके अकॉर्डिंग आप जो सिलेक्शन ऑफ मोटर कर सकते हैं, और विद रेफरेंस टू योर मोटर यू कैन सेलेक्ट योर बैटरीज, ओके। उसके बाद जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रिसर्च हम किस किस रेफरेंस में कर सकते हैं, क्या हमारे पास सोर्स होंगे कि अगर हम इसी में, क्योंकि आप भी ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या ये फ्यूचर है, मतलब दिस इज फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी।
अगर आप कहते हैं कि ये अब जैसे पेट्रोल या डीजल के प्राइस हैं, क्या आपको लगता है कि अब जो प्राइस है, लेट इफ आई से दैट इन जयपुर दिस इज 105 रुपीज पर लीटर, तो ये क्या वेट वेट वापस से कम होगा? ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि 70-80 रुपीज वापस से कभी आएगा ये? हम्म। ठीक है, इवन ये सोर्सेज भी No, sir. लिमिटेड है। इवन अगर आप देखें कि चलो ये तो एक सेपरेट चीज है कि लिमिटेड सोर्स और अनलिमिटेड सोर्स, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है इससे काफी रहता है। और ओबियसली इसी भी अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो प्राइस हैं अभी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी वगैरह ऑफर करती है, इनिशियली अगर आपको पता हो कुछ 5-7 साल पहले जो टू व्हीलर आता था तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देता था, मतलब जो आपका ये इलेक्ट्रिक स्कूटी टाइप में रहता था उस पर सब्सिडी दिया जाता था। इवन सोलर को जैसे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, तो उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट इन चीजों पर वर्कआउट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी वगैरह दिया जाता है, तो इट वुड बी ए ग्रीन सोर्स ऑफ मतलब ग्रीन सोर्स ऑफ मोबिलिटी रहेगा। और अभी जितना जो पोल्यूशन होता है, मतलब आप लोग भी जानते हैं भी, जयपुर जो दिल्ली के जो पब्लिक है वो तो इवन ज्यादा इससे रूबरू होते होंगे डेली बेसिस पर, कि जितना जो पोल्यूशन होता है इन व्हीकल्स के कारण, वो इसके बारे में ज्यादा समझते हैं। तो इसमें जो रेगुलर बेसिस पर या जो डेली बेसिस पर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है, वो मेजर एक तो थ्योरेटिकल रिफरेंस में रहे, देन सिमुलेशन के लिए जैसे क्या क्या चीजें हम सिमुलेट कर सकते हैं इनमें, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर यहाँ हम लोग मेंशन किया है स्पेसिफिकली, ये मैटलैब के बारे में बात कर रहे हैं। देन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि आप फर्दर उनको डिजाइन करके भी देख सकते हैं कि किसी सिस्टम को सिमुलेट किया एंड देन अकॉर्डिंगली आफ्टर ऑन बेसिस ऑफ योर सिमुलेशंस यू कैन डिजाइन इट एंड यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, अभी जैसे चैट बॉक्स में किसी ने ओला ई बाइक के बारे में भी डाला था, ठीक है, और मेरे एक फ्रेंड है, उनका जैसे स्टार्टअप ही है, वो भी इसी तरीके से ही प्लान कर रहे हैं कि जितनी जो ओल्ड यूज जो साइकिल्स है या बाइसिकल्स हैं, तो उनमें जैसे उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और वो जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, सॉरी ओला भी नहीं, ये जो फूड डिलीवरी जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह है, इनमें ऑफर किया जाए। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो उनका डिलीवरी चार्ज है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो भी पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो इस तरीके से काफी सारे मतलब इसमें कमर्शियल प्रोस्पेक्ट भी काफी है। देन एक कंप्लीट जो रिसर्च डोमेन इन ईवीज, एज ये सब हम जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, लाइक मैकेनिकल सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल, इन आईओटी एंड एआई एंड एनर्जी एफिशिएंट बीओएस, बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम। ठीक है, और अभी जो सेशन में ये मे भी ऑटोमोबाइल से भी हैं, इलेक्ट्रिकल से होंगे, मैकेनिकल से हैं, सीएसआईटी, ये लगभग हर एक के लिए ही जो ईवी है एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है फॉर स्टडी और फॉर रिसर्च। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक डोमेन हो गया। देन इसके बाद में दूसरा जो रहता है वो इनके चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड भी है। ठीक है, कि चार्जिंग स्टेशन के डिजाइन्स किस तरीके से बनाए जाएं। अभी जैसे चार्जिंग स्टेशन है नहीं है सच, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे ही इनका ज्यादा बढ़ेगा कंजप्शन, तो जो चार्जिंग स्टेशन है ये भी डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, कि हाउ टू सेलेक्ट और व्हाई शुड वी गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जैसे इसके बाद में अभी मेरे जो कलीग हैं विष्णु सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हो गया वैसे। जी सर, तो अभी ये इनिशियली कुछ इमेज प्रोसेसिंग पर आप लोगों को डिलीवर करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि सेंसर बेस्ड होगा, ठीक है, सेंसर बेस्ड मतलब इमेज प्रोसेसिंग की यहाँ पर क्यों जरूरत है कि जो ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए, ठीक है, कि जितना ज़्यादा उसके पास डाटा रहेगा उसके कंट्रोलर के पास या प्रोसेसर के पास में, उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो आगे डिसीजन ले सकता है। तो सबसे पहले अभी इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बताते हुए फिर हम मैटलैब के कुछ बेसिक फंडामेंटल भी देखेंगे और फिर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी डिजाइन करके देखेंगे इसी मैटलैब पर। ठीक है विष्णु सर, जी सर, थैंक यू और आपने बस टाइम ज़्यादा ले लिया। इतने टाइम में मैटलैब पे थोड़ा सा वर्क करना डिफिकल्ट रहता है। जी सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू।
अपन अभी मैटलैब पे वर्क करने वाले हैं। मैटलैब पे कैसे वर्क होगा, कैसे कमांड्स दी जाती हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको डिजाइन किया जाता है। सर वो सबको मैटलैब मतलब कि जो प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है ना वो ये लगता है कि टिपिकल है, प्रोग्रामिंग है वो बहुत टिपिकल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी जब हम इंजीनियरिंग में थे 2009-10 के अंदर, तो हमें भी लगता था ये प्रोग्रामिंग हमारे समझ में नहीं आएगी, बट मैटलैब को जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया 2013 के अंदर 14 के अंदर, तो मुझे लगा कि वास्तव में प्रोग्रामिंग में जो इंटरेस्ट है ना वो इंटरेस्ट थ्योरेटिकल वर्क में या फिर थ्योरेटिकल जो अपने हैं उनके अंदर इतना इंटरेस्ट है नहीं, प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। बस आपके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तभी आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो बेस्ट होता जाएगा। अब अपन जो वर्क करने वाले हैं सिंपल सी मैटलैब है। मैटलैब को कुछ नहीं पता है, मैटलैब कुछ नहीं जानता है, न इसकी कोई लैंग्वेज है। इसको जैसा आप कमांड दोगे वैसा ही वर्क करेगा। इसका मैटलैब की फुल फॉर्म वो भी मैट्रिक्स लेबोरेटरीज है, मतलब ये मैट्रिक्स पे वर्क करती है। अगर मैं आई थिंक फर्स्ट बात करता हूँ, मैट्रिक्सिंग को लेकर चलता हूँ, आपको दो टूल आपको सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर तो बहुत सारे टूल्स आते हैं मैटलैब के, फजी लॉजिक भी आता है, माइक्रोग्रिड्स की डिजाइनिंग भी आता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिजाइनिंग मतलब की सिमुलिंक की डिजाइनिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है एनएन टूल के ऊपर, मशीन लर्निंग पे भी वर्क करता है, डीप लर्निंग पे भी वर्क करता है। तो इसकी तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, लार्ज साइज का सॉफ्टवेयर है, 20 GB का अप्रोक्सीमेट सॉफ्टवेयर है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन करते हैं ना। क्या क्या बेटा वापस अगेन रिपीट। सर इससे प्रोटेक्शन करते हैं ना सिस्टम हमारा कैसा वर्क करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एज ए टेस्टिंग का वर्क कर रहा है, मतलब अपन ने इसको इनपुट क्या दिया है और उसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास में। इसकी खुद की लाइब्रेरी है, हमारा आउटपुट है स्टेबल है या अनस्टेबल है या पार्शियली बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल है। बिल्कुल स्टेबल है, अनस्टेबल है, अस्टेबल है, कौन सी सिचुएशन के अंदर है, इसका ट्रांजिएंट एनालिसिस कैसा आ रहा है, उसका बिहेवियरल मॉडलिंग कैसी आ रही है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी आ रही है, वो सारी चीजें जो टेस्ट। का एडवांस वर्जन है क्या करे बेटा। सर, ये साई लैब का एडवांस वर्जन है। एससीआई लैब आती है, साई लैब भी अब मेरे पास में रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, बट ये साई लैब तो बहुत छोटा स्मॉल, इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत छोटी एप्लीकेशन है इसकी एससीआई लैब। अभी स्क्रीन से हटा दिया मैंने शायद तक। एससीआई लैब तो सिमुलिंक का ये मान सकते हो बहुत छोटा वर्जन है, बहुत छोटे लेवल पे है एससीआई लैब है वो। एससीआई लैब मैटलैब का 1/10 ही है ये मान के चलिए आप। हाँ ये कर सकते हो, वर्क है वो इसका एक मैटलैब की एप्लीकेशन है सिमुलिंक, मैटलैब की एप्लीकेशन है सिमुलिंक, बस ओनली एससीआई लैब के अंदर होता है सिमुलिंक वर्क। अगर अपने कोई मेथ प्रोसेसिंग करनी है, डीप लर्निंग करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करना है, आज के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क चल रहा है, तो वो सारे के सारे वर्क है वो मैटलैब पे वर्क होते हैं। देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे मेरे पास में कोई इसके अंदर देखो, अगर मैं ए टाइप करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका नाम ही है दक्ष मेहता ही नाम आपका, मैं दक्ष मेहता ही टाइप करता हूँ, दक्ष टाइप किया, तो ये मेरा मैटलैब कहेगा कि दक्ष इज अनडिफाइंड फंक्शन बोलेगा कि इसको नहीं पता दक्ष कौन है। सिंपल सी बात है, मैटलैब को क्या पता दक्ष कौन है। अगर मैं दक्ष की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ कि दक्ष है वो 2 है, दक्ष है वो 5 है, दक्ष है वो 10 है, दक्ष है वो 11 है, कुछ भी अगर मैथमेटिकल इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ, मैट्रिक्स वैल्यू डाल देता हूँ, तब ये कह देगा बिल्कुल दक्ष की वैल्यू है वो 2 है। और वो इसकी मैटलैब में 3 चीजें होती हैं, एक तो होती है कमांड विंडो, एक होता है वर्क स्पेस और एक होता है करंट फोल्डर। वो चीज है वर्क स्पेस में जाके सेव हो जाएगा, वो एज इट इज है वो वर्क स्पेस में जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो अब भी जैसे मैंने दक्ष दिया, दक्ष की कमांड डाली, दक्ष की कमांड डालते ही ये अनडिफाइंड फंक्शन बोलेगा, अभी रोटेट कर रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन बोल देगा कि दक्ष है, उसको दक्ष को मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं दक्ष क्या लिया यहाँ पर, एक इंटीजर वैल्यू लिए, मतलब अनसाइन इंटीजर है। और जैसे इसके ऊपर वो लेता हूँ, दक्ष की वैल्यू डिफाइन करता हूं कि मैंने लिखा दक्ष इक्वल टू 2 या इक्वल टू 5 डालता हूं, तो दक्ष की वैल्यू 5 शो कर देगा कि हाँ भाई दक्ष है। अब ये समझ जाए दक्ष है वो 5 है, और दक्ष और का मुझे एडिशन करवाना है सुनील कुमार के साथ में या किसी और चीज के सामने, जैसे ए इंटीजर a+b करवाना, कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन करवाना, सब्ट्रैक्शन करवाना है, वो सारी की सारी चीजें ये मैटलैब करवा के अपने को परफॉर्म करवा के दे सकता है। आपने आई थिंक जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है सारे सारे कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा, रूट लोकस फाइंड आउट करते हो, बोर्ड फ्लोट फाइंड आउट करते हो, सारी की सारी जो कंट्रोल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, सारी की सारी जो कमांड्स है वो इसके अंदर मैटलैब के अंदर परफॉर्म हो सकती है। आपने कंट्रोल सिस्टम की बुक में देखा होगा, रूट लोकस के, बोर्ड फ्लोट के डायग्राम्स, बहुत सारे राउथ हार्डविज के सॉल्यूशंस, तो उनकी सारी के मैट्रिक्स फॉर्मेट में निकालना है वो अपन मैटलैब के थ्रू निकाल सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं।
बहुत ही इजी तरीके से अपने को अगर रूट लोकस निकालना हो तो बहुत बड़ी इक्वेशन लिखनी पड़ती है, उस इक्वेशन का मैथमेटिकल हाथ से हैंड रिटर्न में उनका कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट मैटलैब में ऐसा नहीं है। मैटलैब डायरेक्ट ही उस चीज का सोल्यूशन करके दे देगा। देखिए ये दक्ष इक्वल टू 5 आ रहा है, ये वर्क स्पेस में जाके सेव हो गया है। मैटलैब है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, मैं उस पर लेके चलता हूँ 2017 वर्जन पे। या हालांकि मैंने डिजाइन पहले से बना के रख रखा आप लोगों के लिए, लास्ट में जाते जाते मैं इसको समझाऊंगा पूरा डिजाइन इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, क्योंकि इतना टाइम में पॉसिबिलिटीज नहीं रहती। इसको बना देता हूँ मैं, पहले आपको बेसिक्स हैं वो इसके समझा देता हूँ, लास्ट में जाते जाते इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले तो दक्ष इक्वल टू एंट्री करता हूँ मैं, दक्ष बोलता क्या, अनडिफाइंड फंक्शन बोलता है, क्या बोलता है। ये देखिए वर्क स्पेस में जितनी भी वैल्यूज है ना, कि एयर की डेंसिटी क्या है, अल्फा अपन ने क्या कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, एरिया क्या लिया है, बीटा क्या लिया है, ब्रेक सी आई और एल्टीट्यूड क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी क्या है, सेल का एरिया क्या है। यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल दक्ष बोल गया। मैटलैब ने बोल दिया कि दक्ष कौन है, दक्ष को ये नहीं जानता है। बट अगर ये कहता हूं मैं कि दक्ष इक्वल टू 5 है, तो ये कह देगा बिल्कुल दक्ष इक्वल टू 5, कि दक्ष की वैल्यू है वो 5 हो गई है, ये दक्ष की वैल्यू है 5 हो गई है। दक्ष के साथ में मैं मेरा खुद को ले लेता हूँ विष्णु इक्वल टू 10, तो विष्णु 10 है, और मैं चाहता हूं कि दक्ष और विष्णु दोनों का एडिशन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए, या विजन ऑटोमेशन के अंदर इक्वल हो जाए दक्ष एडिशन विष्णु। देखो आपको रटना नहीं है चीजें, मैं आपको ये नाम इसलिए ले रहा हूं, मैं यहाँ पर ए और बी भी ले सकता था, बट आप इन चीजों को रटना नहीं। आप इन चीजों को आप कभी रट्टे लगाने लग जाओ कि ए आपने लिया था सर ने तो अपन भी ए ले लेते हैं, बी लिया था बी ले लेते हैं। आप ये इंटीजर वैल्यूज हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो, दक्ष भी डाल सकते हो, ए भी डाल सकते हो, बी भी डाल सकते हो, बस आपके माइंड में रहनी चाहिए कमांड्स, इन कमांड्स को कहाँ यूज में देना है। अब ऑटोमेटिक देखो व्यास इक्वल टू 15 आ गया कि वी एस के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई और दोनों का एडिशन कराया, दक्ष प्लस विष्णु, और दोनों का एडिशन 15 आ गया। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें यूज में आती है, अगर प्लस यूज में लेंगे ना तब भी ये वर्क करेगा। इसकी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, इतने कम टाइम के अंदर मैं समझा नहीं पाऊंगा उन सारी चीज़ों को। कि देखो मैंने दक्ष और विष्णु का मल्टीप्लिकेशन करवाया तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ गया। सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं, तो इसकी बेसिक छोटी छोटी कमांड्स हैं, इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना रहेगा। सीएलसी अब मैं थोड़ा सा आपको सर ने बताया था इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर लेके जाने के लिए, तो मैं इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा। अब मैं कमांड देता हूँ कि ए के अंदर एक वैल्यू असाइन करवाता हूँ, आई एम रीड कैमरामैन। ये मैटलैब की लाइब्रेरी में ऑलरेडी इनबिल्ड है कैमरामैन। आप जो इमेज प्रोसेसिंग में देखते हो ना, आपको लगता है कि नॉर्मल इमेजेस आप ऐसी बन जाती हैं, ऐसी इमेजेस नहीं बनती हैं, सबका सब मैथमेटिक्स पे वर्क होता है, मैथमेटिक्स पे वर्क मैट्रिक्स पे वर्क करती हैं। कैमरामैन डॉट टीआईएफ, देखो मैं सेमी कॉलम नहीं लगाता हूँ, लगा देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इस वैल्यू को मैं शो करवाता हूँ, आई एम शो कैमरामैन की स्पेलिंग देखिए, CAMER नहीं आ जाए, एक मिनट रुको। कैमरामैन डॉट टीआईएफ, आई एम शो। अब जो ए के अंदर जो वैल्यू असाइन करवाई है उसको मैं शो करवाता हूँ कि ए के अंदर क्या है। 256 वर्क स्पेस में देखिए 256 into 256 अनसाइन इंटीजर 8 वैल्यू बन गई है, मतलब 256 बाई 256 की मैट्रिक्स बन गई है, 256 into 256 की मैट्रिक्स बनी है। और एक्चुअल में जो मैट्रिक्स बनी है वो सारा का सारा मैथमेटिक्स से वर्क हुआ है, और अभी जो मैथमेटिक्स से जो वर्क हुआ वो बनेगा क्या, एक्चुअल में जो बन के क्या आपके सामने वो स्क्रीन पे आ जाएगी, इमेज आएगी कैमरामैन की। अभी सिस्टम बिजी दिखा रहा है,
वो एक इमेज आएगी कैमरामैन की, क्योंकि जो ए के अंदर है उस वैल्यू को अपन असाइन करवा दिया कि ए के अंदर वो इनबिल्ड है। तो मैटलैब पे आप वर्क करोगे तो आपको थोड़ी सी पेशेंस तो रखना पड़ेगा हमेशा ही, नहीं तो आप आज के जो 4G और 5G पे वर्क करने वाले बच्चे हैं ना, इतने टाइम तो दो सेकंड का 3 सेकंड का टाइम तो आपको ये मान के चलना कि मैटलैब पे वर्क करोगे तो आपका या तो 8 GB का लैपटॉप हो आपका, मतलब अच्छी हाई स्पीड प्रोसेसिंग का, तभी भी आपको थोड़ा स्लोली वर्क तो करना पड़ेगा। देखिए कैमरामैन की इमेज आ गई है, आपको लगता है इमेज ऐसे बनी है, ये इमेज ऐसे नहीं बनी है, ये सारी की सारी मैट्रिक्स फॉर्मेट में बनी है। इसकी एक मैट्रिक्स है, इसकी मैट्रिक्स दिखाता हूँ आपको। आप चाहो तो इसकी मैट्रिक्स यहाँ से भी देख सकते हो, और चाहो कि कमांड विंडो पे आपको इसकी मैट्रिक्स दिखानी हो तो मुझे सेमीकोलन में आपको यहाँ से रिमूव करना रहेगा और ये मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक ये चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि आपके है कि एक्चुअल में देखिए क्या था, आपको एक कैमरामैन की इमेज दिख रही थी नॉर्मली, पर वो कैमरामैन की इमेज नहीं थी, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट था। देखिए वो पूरी एक मैट्रिक्स थी और इस मैट्रिक्स से मिलके बनी हुई है आपकी इमेज। वो तो जितना भी वर्क होता है वो सारा सारा मैथ पे वर्क होता है, मैथमेटिक्स पे वर्क होता है। और अपने को लगता है कि एक आम इंसान है जो इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है, वो सोचते हैं कि मोबाइल में फोटो, कैमरे में फोटो ले लिया, फोटो खींच के आ गई है। ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं है, सारा का सारा वर्क होता है मैथमेटिक्स वर्क होता है, सारा का सारा वर्क वो मैथमेटिकल वर्क होता है। ये देखिए वो 256 × 256 कितनी बड़ी मैट्रिक्स थी, ये सारी मैट्रिक्स थी, ये सारी की सारी। मैंने सिर्फ क्या किया था, कुछ नहीं किया था, एक सेमीकोलन हटाया था। सेमीकोलन हटाने से क्या इफेक्ट आता है कि जो आपकी कमांड विंडो पे है वो सारे आउटपुट शो हो जाते हैं, और सेमीकोलन लगा देते हैं तो कमांड विंडो पे आपके आउटपुट शो नहीं होते हैं। सेमीकोलन का सबसे पहले तो आप बच्चे होते हैं उनका ये डाउट क्लियर करता हूँ कि सेमीकोलन कॉलम का इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चे हम जैसे बच्चे थोड़े से परेशान हुआ करते थे इंजीनियरिंग में, जब हमें सी लैंग्वेज सिखाई जाती थी, C++ समझाई जाती थी, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था सेमीकोलन क्या होता है, कॉलम क्या होता है। आज मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट मैटलैब के अंदर बताऊं, सेमीकोलन का कोई इफेक्ट नहीं है। सिर्फ स्क्रीन के ऊपर अगर आपको चाहता कमांड विंडो के ऊपर आपका आउटपुट मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर शो करवाना हो तब तो आप सेमीकोलन लगा दीजिए, और अगर नहीं शो करवाना हो तो आप सेमीकोलन हटा दीजिए। इतना ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये मैट्रिक्स थी वो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि CLC कर दिया मैंने। अब एक्चुअल में इस इमेज का आप चाहते हो कि पिक्सल्स अगर रोटेट करके दिखाने हैं, अगर आप थोड़ा सा मुझे प्रोग्राम बनाते हो, आपके सामने बनाऊंगा, टाइम लगेगा करीब 10 मिनट के अप्रोक्सीमेट। आपके सामने एक प्रोग्राम बनाता हूँ इसी का ही, जिसमें आपके जो पिक्सल्स है ना वो कैसे इंक्रीज होते हैं, स्टार्टिंग पिक्सल्स कहाँ से बनते हैं, कहाँ से नहीं बनते हैं, और एक नॉर्मल इमेज है उस इमेज को मैटलैब में कैसे लेके आते हैं, ये दो चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि देखो जैसे नॉर्मल इमेज है उसका IM पिक्सल इन्फो कमांड है, पहले तो मैं उस को शो करवा लेता हूं। एक कमांड देता हूं IM पिक्सल इन्फो, आपको एक हर एक कमांड को शो कर देगा IM पिक्सल। आप यहाँ पे ध्यान रखते रहना कि यहाँ पे वो क्या सिस्टम बताता रहता है, बीजी बता रहा है, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे IM पिक्सल इन्फो में X यहाँ पे इसके रोज बता रहा है, Y यहाँ पर इसके कॉलम्स बता रहा है, और ये इसकी इंटेंसिटी बता रहा है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में इसके कॉलम थे 2x2 की मैट्रिक्स है, देखिए जैसे जैसे यहाँ इंक्रीज रो आपकी जो कॉलम्स हैं वो तो कांस्टेंट रहेंगे, कॉलम्स तो सेकंड में चल रहे हैं पर रो हैं वो आपकी इंक्रीज हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे 256 रोज आ जाएंगी, इस कॉर्नर पे जाएंगे तो कंप्लीटली आपकी क्या जाएंगी 256 × 256 मैट्रिक्स आ जाएगी। दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर आपको? यस सर। और ये जो लास्ट वाली शो कर रहा है वो इसकी इंटेंसिटी शो कर रहा है। ये इमेजेस होती हैं, इमेजेस को अपन ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं,
बाइनरी इमेज भी बना सकते हैं, ग्रे इमेज भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो इमेज चाहते हैं वैसी इमेज इसके अंदर अपन इसको बना सकते हैं। इनके अंदर मतलब जो आपके लगता है कि पहले 1 मेगापिक्सल कैमरा आया करते, 2 मेगापिक्सल कैमरा आया करते थे, मैंने कम से कम भी 50 प्रोजेक्ट इमेजिनेशन पे ऐसे कर दिए हैं जो R&D के वर्क होते हैं। मैं उनकी इंटेंसिटी को आपको देखो, आज के टाइम में इंडस्ट्री का जो पॉइंट है ना वो है कि आपको साइज को तो रिड्यूस करना रहता है और उसकी एप्लीकेशन लार्ज करनी रहती है। तो आपको जितना भी ऑप्टिमाइजेशन करना रहता है, जितना भी R&D का जो वर्क होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जितना वर्क होता है, उसमें आपको साइज को रिड्यूस करना है। कैसे करके उसकी साइज है वो तो रिड्यूस कीजिए और उसकी एप्लीकेशन से उनको इंक्रीज कीजिए। जैसे आपका कैमरा तो उतना का उतना ही रहा, पहले कैमरा 1 मेगापिक्सल कैमरे आते थे और इतना बड़ा ही कैमरा आता था, और आज वही कैमरा 8 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल कैमरा आने लग गए, बट उनकी साइज तो स्मॉल की गई है और उनकी एप्लीकेशंस हैं वो लार्ज की गई हैं। तो सेम एज इट इज आपको R&D के फील्ड में यही करना रहेगा कि साइज को स्मॉल करना है और उनकी टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, इसके पिक्सेल्स दिखाता हूँ मोड और फ्लोर कमांड के थ्रू, कि मोड और फ्लोर कमांड के थ्रू इसके पिक्सेल्स कैसे चेंज होते हैं। विष्णु सर ये पूछना चाहता हूं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही दोस्त, आप बताएं। वॉइस क्लियर पूछना चाह रहे हैं ना? वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ पूछे दक्ष। तो सर मैं नहीं पूछा सर, ये किसी ने माइक ऑन कर दिया था भाई ने गलती से। अच्छा अच्छा, अभी मैं आपके सामने एक कमांड देता हूँ सीडी, एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसके पिक्सेल्स दिखा रहा हूँ पूरे कैमरामैन की इमेज के। सीडी डबल सीडी, यहाँ पे खुद आप डरना मत ना, सीडी मैंने क्या यूज में लिया, सीडी कांस्टेंट फंक्शन है, आप सीडी यूज में ले लो, बीडी यूज में ले लो, ए यूज में ले लो, बी यूज में ले लो, कुछ भी यूज में ले लो, तो आप इन चीजों से डरना मत ना। सीडी सर सीडी आपने यूज में लिया तो ये कोई वो नहीं है, एक इंटीजर फंक्शन है डबल। और किसके अंदर असाइन करवाया था मैंने, ए के अंदर वो इमेज है मैंने असाइन करवाई थी, ये मैंने गलती कर दी है, सेमीकोलन लगाना चाहिए था मुझे। अब मैं फिगर लगा के, फिगर आई एम शो सीडी, ये देखिए आपकी ब्लैंक इमेज क्रिएट हो गई है। चलो ठीक है, अपन एक चीज और करके देखते हैं। एक नॉर्मल इमेज लेते हैं, उस नॉर्मल इमेज को अपन मैटलैब में कैसे लेके आते हैं वो चीज आपको मैं सिखाता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कि नॉर्मल इमेज है, उस नॉर्मल इमेज को मैं मैटलैब में कैसे लेके आता हूँ। मान लीजिए मैं कोई एक इमेज निकाल लेता हूँ, देखो आपको कोई चीज रटनी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने ओपन की है, एक नॉर्मल इमेज है, उस इमेज को मैटलैब में कैसे लेके आना, मुझे कैसे परफॉर्म करवाना है वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल एक इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, ए के अंदर मैं वैल्यू असाइन करवाता हूँ। ठीक है, ए के अंदर मैं इसको आई एम रीड इसकी एक बेसिक कमांड है। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इस प्रॉपर्टी से मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, इसकी लोकेशन कि ये इमेज है वो कहाँ पर है, तो यहाँ से मैं इसकी लोकेशन को कॉपी किया,
और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और वापस से एक स्लैश लगाता हूँ और उसी इमेज की उस इमेज का नाम क्या था, इमेज 156 और जेपीजी एक्सटेंशन के अंदर है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करवा देता हूँ .jpg। ए के अंदर ये वैल्यू है, ये मैट्रिक्स असाइन हो गई है। अब देखिए ए के अंदर एक नॉर्मल इमेज थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये इमेज क्या थी। ये एक नॉर्मल इमेज है, स्क्रीन पे इसको शो करवा देता हूँ। इसको मैटलैब में लेके आ रहा हूँ और मैटलैब में उसके ऊपर मैं रिसर्च R&D करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। एक नॉर्मल इमेज है बच्चों की पैनल के साथ में, इस इमेज को मैटलैब में लेके आना था, मैं मैटलैब में लेके आया हूँ। अब इसको मैं शो करवाता हूँ, आई एम शो ए। कुछ नहीं किया, सिर्फ उसकी लोकेशन को डिफाइन किया यहाँ पर। ये कह रहा है वार्निंग दे रहा है कि साइज है वो बिग लार्ज साइज है, 33% शो कर रहा है। देखिए मैटलैब की इमेज आ गई है, मैटलैब पे इमेज शो हो गई है, आप फिगर देख सकते हो, मैटलैब का लोगो लगा हुआ है, मैटलैब पे इमेज ओपन हो गई है। और कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने उसकी लोकेशन मैटलैब पे डाल दी है। तो आपको इन चीज़ों को रटना नहीं है, इन चीज़ों इन कमांड्स को सीखते हुए इन चीज़ों को अगर एक बार सीख जाओगे ना, एक बार आप प्रैक्टिस में ले आओगे तो बहुत अच्छे से वर्क इन चीज़ों पे कर पाओगे। अब जैसे अगर ईवी की बात करते हैं कि ईवी में इनको कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप में से कोई बताएगा कि वहां पर इन चीजों का या इन कमांड्स का क्या से रेफरेंस है या हम इसके बारे में क्यों कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स? ये जो भी सर ने बताया कि ठीक है इमेज का, इवन जैसे लाइव कैमरा से आपको इमेज लेना है, आपने देखे होंगे। हमने जब हाँ बताएं। जैसे हमने सिस्टम बनाया है, जैसे एक तो उसके परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम हमने डिजाइन करा ईवी के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, उसके पैरामीटर्स को इसमें डाल के उसको चेक कर सकते हैं, उसका ग्राफ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या बीच में दिक्कत आ सकती है, नहीं आ सकती, जो भी हो मैट्रिक्स के थ्रू सारा बता देगा उसमें वो। नहीं जैसे ये तो जैसे जैसे अगर कैमरा से लाइव इमेज आ रही है आपकी, ठीक है, और इमेज का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, पहले जैसे पेड़ का साइज था कैमरा में, और जैसे जैसे आपकी व्हीकल उसके पास जाता है तो उसका साइज बड़ा हो जाए, तो जैसे ही उसका साइज बड़ा होने लग जाता है, ठीक है, ये और उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब उसमें कोई सेंसर भी साथ में हाई होता है, तो वो कमांड दे देगा रुकने की कि ऑब्स्टेकल आ रहा है अभी कोई इसके पास में, ठीक है, और वो ऑब्स्टेकल क्या है वो इमेज प्रोसेसिंग से पता चल जाएगा कि ठीक है पेड़ है तो उसकी डिजाइन कैसी होगी, उसके जो पत्ते हैं हरे है ना, एक तो वो टहनी होगी, तो इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उसके सिस्टम में स्टोर्ड रहेगी, तो आगे से उसको कैसे क्या काम करना है वो प्रिडिक्शन के लिए भी ये डाटा उसके काम आता है। ठीक है, तो सर अभी कुछ जो फंडामेंटल्स बता रहे हैं इन सब चीजों से रिलेटेड, तो भी जैसे ये इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बताया सर ने, है ना, तो ये हो सकता है आप लोगों को अभी क्या है थोड़ा सा नया सॉफ्टवेयर है और पार्टिसिपेंट आप लोग भी क्या अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, है ना, तो हो सकता है कुछ ने इसको कवर किया हो, कुछ से नहीं हो पाया हो, तो ये जो है वो फर्दर भी जैसे सर से अगर अप्रोच करना हो कभी आधे घंटे 1 घंटे के सेशन के लिए सर वो चीज़ें क्या थी, या अगर हम खुद से ऐसा कुछ करना आप लोग भी करना चाहें तो उसके लिए जैसे लास्ट में मैम जो है कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर करेंगे सर सभी के, तो आप वो देख सकते हैं। तो विश्व आप करें आगे जो कंटिन्यू इसके बाद में, जैसे ये तो इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो गया, करें सर आप कंटिन्यू करें। हेलो, हाँ वो सॉरी वो माइक ऑफ रह गया था। ये कह रहा हूँ, हाँ वो माइक ऑफ रह गया था। जैसे अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जैसे अभी अपने जो इमेज ली थी उस इमेज का अगर मैंने यहाँ पे पहले सेमीकोलन लगा रखा था, इस सेमीकोलन को अगर रिमूव कर देता हूँ
तो ये पूरा पूरा मैट्रिक्स फॉर्मेट आ जाएगा। आपको लगता है वो इमेज है, बट अगर आप उसको R&D के एरिया से देखोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया से देखो, तो वो कोई इमेज नहीं थी, वो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट था। और वो मैट्रिक्स फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे देखो शो हो रहा है, और वो मैट्रिक्स है वो 1536 इंटू 2048 की मैट्रिक्स थी वो। आपकी देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर आ रही है, ये जितनी बड़ी मैट्रिक्स है वो। और आपको लगता है वो कोई एक इमेज थी, वो कोई एक इमेज नहीं थी। वो अगर आप R&D के एरिया से नजर से देखोगे तो वो इमेज ना हो के वो क्या क्या एक मैथमेटिक फॉर्मेट था आपका। और ये बेसिकली क्या है, जैसे अब अगर आप कहो कि सर इमेज को हम मैट्रिक्स में कैसे बदलें, या इमेज जो है ना बेसिकली, अगर आप इनके बारे सर अभी जो बता रहे हैं बेसिकली पिक्सल्स के बारे में बता रहे हैं। कोई भी एक फोटो RGB से मिलकर बनता है, ठीक है। RGB जो है आपके 3 बेसिक कलर्स हैं और उन्हीं के अलग अलग परसेंटेज है। ये जो है ये उनका परसेंटेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इस इमेज मतलब ये किसी एक पिक्सल में, मतलब उस पिक्सल में उसका R कितना है, G कितना है, B कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एक जो नया कलर है तो वो कैसे क्या बनेगा। तो ये लेकिन क्या है होता अल्टीमेटली सब क्या है पिक्सल्स के फॉर्मेट में है, ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। और यही आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी भी कंप्लीटली परफॉर्म नहीं हुआ है, कंप्लीटली मैट्रिक्स परफॉर्म नहीं हुआ, अभी भी मैट्रिक्स वो रोटेट कर रही है, चल रही है। तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स थी, देख लीजिए आप सब लोग। और अपन सोचते हैं कि वो एक नॉर्मल इमेज है, वो सारे के सारे RGB इमेज थी, उसके पिक्सल्स हैं वो। ये सारे के सारे मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं आपको, पिक्सल्स हैं सारे कंप्लीटली। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये पिक्सल्स तो रोटेट करते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर। ये आपका डिजाइन आपकी स्क्रीन पे शो हो गया होगा, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल का डिजाइन है। इसके अंदर व्हीकल के डायनेमिक्स हैं, कूलिंग सिस्टम है, कंट्रोल्स है, कैसे कैसे डिजाइन बनते हैं। अगर आप मैटलैब पे देखो, यहाँ पर अगर सिंपल सी कमांड देते हो, मैटलैब मैं आपके सामने कोई ओपन करता हूँ, इस मैटलैब के अंदर आप एक सिंपल सी कमांड देते हो सिमुलिंक की, आप यहाँ पे लिखते हो सिमुलिंक, तो आपके सामने एक सिमुलिंक की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको डिजाइन, जितने डिजाइन बनाने हो उतने सारे डिजाइन बना सकते हो। इसके अंदर, इसकी लाइब्रेरी के अंदर सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं सिमुलिंक आपके सामने ओपन कर लिया है, वो सिमुलिंक ओपन होता रहेगा, टाइम लेगा वहां से। ये एक कंप्लीट सिमुलिंक मॉडल है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही है। और अब इसके ऊपर अपन अगर वर्क करते हैं तो जैसे कंट्रोल पार्ट है, इसका कंट्रोलिंग करवाया, तो इसके अंदर इसके सब सिस्टम्स बने हुए हैं। कूलिंग सिस्टम इसका सब सिस्टम बना हुआ है, बैटरी लगी हुई, बैटरी का सब सिस्टम बना हुआ है जो आपके, और DC टू DC कन्वर्टर, AC टू DC कन्वर्टर ये भी लगे हुए हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जो छोटे इमेज के अंदर। और ये देखिए बैटरी, बैटरी के साथ में DC टू DC कन्वर्टर, तो सर ने बताया था कि DC से DC कन्वर्टर है वो। ये देखिए, हो सकता है इसमें। क्या कह रहे हो? PLC यूज नहीं हो सकता क्या इसमें? अच्छा, PLC यूज होती होगी, हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, ये और इसमें मैटलैब में PLC भी हो सकते हैं, PLC कोडर भी हो सकते हैं, PLC कोड भी परफॉर्म हो सकते हैं। मतलब इसका खुद का एक वो आता है, जैसे यहाँ पे देखो लॉजिक एनालाइजर है, सिमुलिंक है, मतलब PLC के कोड भी परफॉर्म हो सकते हैं। PLC कोडर के नाम से इसके अंदर एक कमांड आती है। मैटलैब के अंदर तो सारा कंप्लीटली आ जाता है, PID कंट्रोलर, PLC ऑटोमेशन का भी आ जाता है। बट देखो अगर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, भवानी सर है वो PLC के ऑटोमेशन सेक्टर के एक्सपर्ट हैं PLC पे, और उनको आपको कुछ ज्यादा डिटेल चाहिए तो भवानी सर से थोड़ा सा डिस्कस करना, मतलब कि डीपली लार्ज टाइम से ऑटोमेशन पे वर्क कर रहे हैं। मेन जो फोकस है ऑटोमेशन ही है उनका। अब मैं यहाँ पे डिजाइन की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इनपुट दिए गए हैं कि इसको ब्रेक का पोर्टल क्या है, थ्रोटल लेवल क्या है, क्रैशेस डिस्क ब्रेक क्या है, इंजन का डिग्री टेम्परेचर क्या है। इसके आउटपुट अपने पास में जो ले रहे हैं, इसके जो आउटपुट ले रहे हैं वो देखिए क्या यूज में ले रहे हैं। ये स्कोप यूज में लिया हुआ है, देखो ये स्कोप है। इसके अंदर आपने CRO सबने देखा हुआ, सारे बच्चों ने CRO देखा हुआ,
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है सीआरओ। सर देखा और है, मैंने साइकिल CRO। क्या है 2 साल से कॉलेज ही नहीं देखा होगा अभी, यस सर देखा है। है ना, तो वो कॉलेज आने पर ही दिखते हैं ये सब चीजें। ये सर हमारे में चलो सही बात है। अगर आप वैसे 2 साल से कॉलेज नहीं देखा, बट सीआरओ है वो इंजीनियरिंग में, अगर बच्चे इंजीनियरिंग में चले जाते हैं तो सीआरओ तो देख ही लेते हैं। अगर जैसे मैटलैब में नॉर्मली सीआरओ वर्क करता है, वैसे मैटलैब में स्कोप वर्क करता है। ये आपका जो स्क्रीनिंग का काम है ना, जो स्क्रीनिंग का काम है, जो स्क्रीन का वर्क करता है, जो आपके आउटपुट को शो करवाने का काम करता है, वो स्कोप वर्क करता है। ठीक है गाइज, अब देखिए मैं इसके स्कोप ओपन करके दिखाता हूँ आपको। प्रोसेसिंग स्लो है सर, बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। ना तो स्कोप ओपन हो रहा है। मल्टीटास्किंग बहुत स्लो हो जाती है कुछ मोटर में। हम्म, अभी मैंने क्या 2017 और 21 दोनों ओपन कर रखे हैं, दोनों के अंदर दिखा रहा हूँ ताकि कोई सा तो एट टाइम में रिप्रेजेंट करता रहे। यस सर। मॉडल को भी दोनों में रन करवा रखा है कि एक स्लो जाए तो दूसरा फास्टली स्मूथली वर्क करे। ये यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, देखिए यहाँ पर ये आपके इनपुट पार्ट्स हैं, ये इसके इंक्लिनोमीटर यूज में लिया हुआ है, ये आपकी पल्स काउंटर यूज में लिए हुए हैं। देखिए ये स्कोप अप ओपन हुआ है, ये एज ए आपका सीआरओ का स्क्रीनिंग का वर्क करता है। जो आपको अगर कोई चीज़ का आउटपुट देखना हो, स्क्रीन देखनी हो, तो मैटलैब के अंदर स्कोप के नाम से आपको लाइब्रेरी मिलेगी। स्कोप के अंदर आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने रहेंगे, तो स्कोप के अंदर ये इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बन जाएंगी। ये देखिए मैंने पहले ही रन करवा के रख रखा था, मुझे पता था एट ए टाइम में अगर इसको मैं रन करवाता सिस्टम को तो मुझे 20 या 25 मिनट का वेट करना पड़ता आप सब लोगों को। अब देखिए मैंने जो पैरामीटर इसमें निकाल रखे हैं ना, वो निकाल रखे हैं, व्हीकल की स्पीड निकाल रखी है कि व्हीकल की स्पीड क्या रहेगी। मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। बैटरी के वोल्टेज हैं वो क्या रहेंगे, मोटर का टेम्परेचर है वो क्या रहेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाया रखा है वो आपका व्हीकल की स्पीड दिखा रखी है कि 14 किलोमीटर पर आवर एमपीएच के अंदर दिखा रखी है कि 14 एमपीएच तक मैक्सिमम इसकी आउटपुट वेलोसिटी है वो जा रही है। बैटरी कितनी चार्ज हो रही है, कितनी डिस्चार्जिंग मोड में चल रही है। इस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में चार्जिंग मोड में शो हो रही है, फिर उसके बाद में डिस्चार्जिंग मोड में शो हो रही है, फिर वापस चार्जिंग मोड में शो हो रही है, फिर उसके बाद अपर हाई लेवल में शो हो रही है। ऐसे ही मोटर का टेम्परेचर है, मोटर का टेम्परेचर जैसे जैसे अगर बैटरी चार्ज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, तो मोटर का टेम्परेचर है वो देखिए इस पॉइंट पे जाके हाईली इंक्रीज हो रहा है। किस टाइम पे इंक्रीज हो रहा है, जब बैटरी वोल्टेज भी मैक्सिमम दे रही है और आपकी व्हीकल की स्पीड भी आपकी क्या मैक्सिमम मिल रही है। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पर जब आपकी व्हीकल की स्पीड है वो भी हाई है और आपकी बैटरी है, बैटरी की जो वोल्टेज है वो भी हाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीक वोल्टेज आ रहे हैं, उस टाइम पे मोटर का टेम्परेचर है वो भी आपका क्या हो रहा है, हाई हो रहा है।
तो आप इन सब चीज़ों के इनपुट पैरामीटर्स को चेंज करते हुए इनके आउटपुट्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। अब देखिए ये व्हीकल कंट्रोल के अंदर अभी अपन ने एक यूज में लिया था व्हीकल कंट्रोल, उस व्हीकल कंट्रोल के अंदर एक डिजाइन बनाया था। तो ये डिजाइन कैसे बना है, क्यूरियस कंट्रोल यूज में लेते हुए, टॉर्क डिमांड मैनेजमेंट यूज में लेते हुए, फॉरवर्ड ट्रम फॉर रेक्टेंगुलर ब्रेकिंग यूज में लेते हुए, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम सारा का सारा आपको ये खुद को डिजाइन करना पड़ता है। और खुद को डिजाइन करते हुए आपको स्पीड कंट्रोलर, ये सारे के सारे जितने परफॉर्म लगा रखे हैं ना, आपको रिसर्च पेपर देखने पड़ते हैं। रिसर्च पेपर से देखते हुए इसको आपको यहाँ की लाइब्रेरी में मिल जाएगा। ये इसकी लाइब्रेरी होती है, इस लाइब्रेरी में सारे के सारे कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट्स यूज में ले रखे हैं ना, सारे के सारे कंपोनेंट्स वो मैटलैब की इस लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे। सिमुलिंक लाइब्रेरी है, यहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। लाइब्रेरी ब्राउजर आपको रहेगा यहाँ पर, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट, साइन वेव चाहिए, कोसाइन वेव चाहिए, ट्रायंगुलर वेव चाहिए, साउथ वेव चाहिए, जैसी भी आपको वेव चाहिए। अगर मैं सिंपल साइनसोइडल वेव फॉर्म की बात करूँ, सिंपल साइनसोइडल वेव फॉर्म वो आप मैटलैब में डायरेक्ट बना सकते हो, प्रोग्राम के थ्रू बना सकते हो, और डायरेक्ट आप कमांड सिमुलिंक मॉडल के थ्रू बना सकते हो। ये इसकी लाइब्रेरी ओपन हो रही है। यहाँ पे सारे के सारे आपको डायोड, जनरल डायोड, आपने सब लोगों ने डायोड भी पढ़े होंगे, जनरल डायोड भी पढ़े होंगे, IN4007 PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, जितने भी डिवाइसेस पढ़ी हैं आपको सारे के सारे मैटलैब की इस लाइब्रेरी के अंदर, ब्राउजर के अंदर मिल जाएंगे। एक तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पर डबल क्लिक करके, स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से भी आप देख सकते हो। जैसे अगर मुझे कोई यहाँ पर कुछ साइन वेव चाहिए तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा और साइन वेव टाइप कर दूंगा, तो साइन वेव मेरे पास में डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं से भी ले सकते हो, चाहे तो यहाँ आप यहाँ लाइब्रेरी ब्राउजर से जाके यूज में ले सकते हो, चाहे स्क्रीन पे डबल क्लिक करके यहाँ से ले सकते हो। रनिंग मोड में है तो इनकी कलर कोडिंग करना है, कलर चेंज करने हैं, वो सारे जैसा आपका MS वर्ड वर्क करता है ना, एज इट इज MS वर्ड की तरह ये वर्क करते हैं। वायर्स हैं, कनेक्ट करवाने हैं तो वायर्स भी आप नॉर्मली जैसे नॉर्मल कनेक्ट वायर करवाते हो वैसे नॉर्मल वायर कनेक्ट करवा सकते हो। इसमें कोई अलग से आपको वायर लेने की यूज में नहीं रहती। अगर मान लीजिए मैं इसको किसी एक सिस्टम को डिलीट कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इस वायर को डिलीट कर देता हूँ और ये वायर मुझे कनेक्ट करवाना हो तो मैं डायरेक्ट इस वायर को कनेक्ट करवा सकता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ कनेक्ट करवा सकता हूँ। बैटरी आपको बैटरी भी मैटलैब की लाइब्रेरी में आपको 10 या 12 टाइप की बैटरी मिल जाएंगे। सर ने बताया था कि लिथियम आयरन बैटरी चाहिए, ये बैटरी चाहिए, मतलब कि सिलिकॉन की बैटरी चाहिए, मतलब कि जितनी भी आपकी बैटरीज मार्केट में अवेलेबल है सारी की सारी बैटरीज आपको इस मैटलैब की लाइब्रेरी में मिल जाएंगी जो आज के टाइम में अवेलेबल हैं। इनके पैरामीटर्स भी आप चेंज कर सकते हो, बैटरी के ऊपर डबल क्लिक करके इसके ऊपर इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे, उस पैरामीटर्स को आप चेंज कर सकते हो कि आपको कितने वोल्टेज रखने हैं, कितना पावर रखना है। ये बैटरी का व्हीकल कंट्रोल का ओपन हो रहा है। इनके सबके पैरामीटर्स आते हैं, पैरामीटर्स आप चाहो उतने चेंज कर सकते हो। ये देखिए ये ब्लॉक पैरामीटर ऑफ बैटरी। अब बैटरी के अंदर आप क्या नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड सेल कितने यूज में ले रहे हो, 15 सेल यूज में लेने हैं आपको, 16 सेल यूज में लेने हैं,
नंबर ऑफ पैरेलल सेट ऑफ सीरीज कनेक्टेड सेल्स कितने यूज में लेने, कितने यूज में नहीं लेने, इनिशियल चार्ज ऑफ डेफिशिएंट QEIN इंटीजर फंक्शन यूज में ले रखा है। आप इनको जितने चेंजेस, जैसे 50 ले रखा है, मैं यहाँ पे 60 यूज में ले लेता हूँ, तो आपका क्या आउटपुट का वेरिएशन है ना वो चेंज हो जाएंगे। मतलब कि आप जो नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड सेल्स यूज में ले रहे हो, कितने सेल्स यूज में ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल पर सेल्स कितने यूज में ले रहे हो, उनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, थर्मल के अंदर कितना यूज में ले रहे हो, उनका मास कितना होना चाहिए, टेबल के अंदर ब्रेकआउट कितना आना चाहिए, वो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, वो यहाँ पर आपको चेंज मिल जाएंगे। सारे के सारे पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और आप इनके ऊपर R&D कर सकते हो। जैसे अपन देखते हैं कि सर बता रहे थे थोड़ी देर पहले आपको, जैसे टाटा एलेक्सा है, वो अपने अलग से इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकाल रही है, और उनके कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन होंगे। जैसे अगर नॉर्मल बाइक की बात करता हूँ, अभी डीजल इंजन बाइक की बात करते हैं, या फिर पेट्रोल इंजन की बाइक की बात करते हैं कि प्लेटिना का एवरेज अच्छा है एज ए कंपेरिजन हीरो की बाइकों के कंपेरिजन में, तो अच्छा है, तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन डाल रखे हैं। उनका इंजन बनाने का डिजाइनिंग का तरीका है वो कुछ डिफरेंट है, हीरो स्प्लेंडर प्लस का डिजाइनिंग का कुछ तरीका डिफरेंट है, कुछ पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो डिफरेंट है। तो सेम इनके अंदर इनकी डिजाइनिंग के पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो आप इनके अंदर इनकी टेस्टिंग कर सकते हो कि आपको किस अकॉर्डिंग आपको पार्ट्स यूज में लेने, किस अकॉर्डिंग यूज में नहीं लेने, थर्मल पर सेल्स के किस अकॉर्डिंग यूज में लेने हैं, कैपेसिटी क्या है, उनकी एलयूटीज क्या है, आरओज क्या है, तो आप इनके अंदर पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर सकते हो आप। ठीक है गाइज। स्टूडेंट्स, आपको क्या क्लियर हुआ जो सर अभी बता रहे हैं मैटलैब के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इमेज प्रोसेसिंग सर ने बताई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बताया है, क्या आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ? एक दिन में बहुत ज्यादा तो नहीं होगा जी। ठीक है, तो सर अभी वाला सेशन फिर क्लोज करें? हाँ बिल्कुल मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। देखो थोड़ा सा मैटलैब है, वो लार्ज सॉफ्टवेयर है, आप सोचते हो कि थोड़ा जल्दी ही ये समझ में आ जाए, अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि अगर आप बीच में धीरे धीरे काम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट भी होगा। अभी मैं आप लोगों के साथ में चैट बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ आज के फीडबैक के लिए। इसको आप प्रॉपरली भरें, अपना नाम वगैरह अपना प्रॉपर उसके अंदर मेंशन करें, क्योंकि ये आगे आपके सर्टिफिकेशंस आपके कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडीज पे ही आपके पास आएंगे। एंड आपका नाम आप इसके अंदर प्रॉपर डालें। एंड होप आप सब लोगों को मिला होगा मेरा मैसेज। ठीक है, तो पहले आप एक बार इसको फिल करें। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो भवानी सर एंड विष्णु सर दोनों आप लोगों की क्वेरीज के लिए आपके क्वेरीज के आंसर वो करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरी है रिलेटेड तो होप सबका ओपन भी हो गया होगा लिंक फीडबैक के लिए। मैम मुझे फीडबैक का लिंक नहीं मिला। आप एक बार इसके चैट बॉक्स में जाइए अंकिता। मान्य लाल सर सॉरी। ओके मैम। Thank you students. Thank you Bhavani sir and Vishnu sir for this wonderful session.
स्पेशली मैटलैब और उनको, क्योंकि मुझे पता है मेरा खुद का लैपटॉप बहुत हैंग होता है जब हम नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर्स के साथ में अगर हम मैटलैब, क्योंकि एक हैवी सॉफ्टवेयर है, उसको करते हैं तो। बाकी आपने जो सेशन बताया, स्पेशली इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बताया, सर ने पूरा इलेक्ट्रिकल के बारे में बताया, बैटरी, आईओटी, इनके कंपोनेंट्स के पूरा बारे में बताया। थैंक यू भवानी सर एंड सुनील सर, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। अगर आप लोग बढ़ चुके हैं देन आप लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Okay, thank you everyone. Thank you Vishnu sir. थैंक यू सर, थैंक यू।